اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ سے آ رہی ہے گیان واپی مسجد کو لے کر۔ جی ہاں، خبر ہے کہ گیان واپی مسجد کے تہخانے میں پوجا پاٹ جاری رہے گی۔ سپریم کورٹ نے پابندی لگانے سے انکار کر دیا۔ مسجد کمیٹی کا مطالبہ جو تھا اس سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، رد کر دیا۔ ہندو فریق کو بھی نوٹس دی گئی، نماز اپنے مقام پر جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن مسجد کے نیچے کے حصے میں یعنی تہہ خانے میں پوجا پاٹ جاری رہے گی۔ سپریم کورٹ نے پوجا پاٹ پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ مسلم فریق کی درخواست پر ہندو فریق کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری مداخلت کے بغیر اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ مسلم فریق نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا اور پوجا پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سال 31 جنوری کو وارانسی ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کے بعد تہہ خانے میں پوجا شروع کی گئی تھی۔ جج نے ریٹائر ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے شاید یہ فیصلہ پوجا پاٹ کی اجازت کا سنایا تھا۔ یقیناً اس جج کو بھی کوئی بڑا مرتبہ دے دیا جائے گا، کوئی بڑا پد دے دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ بڑی خبر آ رہی ہے مختار انصاری مرحوم کو لے کر۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک غریبوں کا مسیحا ہمدرد چلا گیا۔ خبریں آ رہی ہے کہ گزشتہ کل اسد الدین اویسی نے مختار انصاری کے اہل خانہ سے، ان کے گھر والوں سے جا کر ان کے گھر پر ملاقات کی، انہیں تعزیت پیش کی۔ اسد الدین اویسی نے اتوار کی شب مختار انصاری کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ غازی پور کے محمد آباد میں مختار انصاری کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران اویسی نے کئی سوالات اٹھائے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مختار انصاری کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد
सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके अहले खाना के साथ, हामियों और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ओवैसी ने यह भी कहा कि इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। जो मेरा मशहूर शेर है, जो मैं बयानात में कहता हूँ, वही शेर कल असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ज़बान से कहा कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। इससे पहले भी ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवालात उठाए थे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी ने जबरदस्त अंदाज में मोदी पर हमला किया और कहा कि इस वक्त नरेंद्र मोदी आसाम से लेकर महाराष्ट्र तक करप्शन की फ्रेंचाइज बांट रहे हैं। केरला से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने पीर के दिन 1 अप्रैल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए, तनकीद करते हुए कहा कि बदउनवानी के मामले से मुताल्लिक उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी बदउनवानी की, करप्शन की फ्रेंचाइज शिमाल मशरक में आसाम से लेकर मगरबी हिंदुस्तान के महाराष्ट्र तक तकसीम कर रहे हैं और बीजेपी बदउनवानों की, करप्शन करने वालों की आमाजगाह, पनाहगाह बन गई है। यानी जिसको भी ईडी, सीबीआई और जेल से बचना है वो सीधा बीजेपी में चला जा रहा है और फिर वो पाको साफ होकर बच जा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बातें जबरदस्त अंदाज में शेयर की है। एक बड़ी अफसोसनाक खबर फिर आ रही है कमाल मौला मस्जिद दिल्ली को लेकर। जी हाँ, खबरें आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमाल मौला मस्जिद का सर्वे रोकने से इनकार कर दिया। यानी कमाल मौला मस्जिद का भी सर्वे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के दिन भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स के साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट आने के बाद इसकी इजाजत के बगैर कोई कार्रवाई न हो। मध्य प्रदेश के जिला धार में वाक़े 11वीं सदी की तारीखी इमारत को, जो महकमे आसार कदीमा के कंट्रोल में है, हिंदू वाग देवी सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं, जबकि मुसलमानों के नज़दीक ये मस्जिद कमाल मौला है। 7 अप्रैल 2003 के महकमे आसार कदीमा के इंतज़ाम के मुताबिक हिंदुओं को हर मंगल को भोजशाला में पूजा की और मुसलमानों को हर जुमा को नमाज अदा करने की इजाज़त है। लेकिन अब इस कमाल वाला मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रोकने से इनकार कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट का जो भी नतीजा निकलेगा उस पर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई कार्रवाई न की जाए, ऐसे आदेश भी दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर खबर आ रही है कि उनकी हिरासत में, उनकी गिरफ्तारी में और दिन बढ़ा दिए गए हैं, तौसी कर दी गई है और केजरीवाल को तिहाड़ जेल रवाना कर दिया गया है। शराब घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल को आज 15 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। तिब्बी मुआयने के बाद वजीर आला केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है, जहां वो अलग कोठरी में रहेंगे। इससे पहले केजरीवाल को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज की अदालत में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से मुतालबा किया कि अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की अदालती हिरासत में भेजा जाए, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल को डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए। पूछगछ में केजरीवाल गोलमाल जवाब दे रहे हैं, बेशतर सवालों का जवाब नहीं दे रहे। केजरीवाल ने अदालती हिरासत में 3 किताबें, भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, वजीर आजम कैसे फैसले लेते हैं, इन 3 किताबों के रखने की इजाजत उन्होंने मांगी है। अदालत ने जेल भेजने से पहले केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल, वजीर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी। नई मुंबई से बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि नई मुंबई में एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी ताजिर से 2 करोड़ रुपये का हफ्ते के इल्जाम में पुलिस इंस्पेक्टर समेत 5 दीगर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस पुलिस इंस्पेक्टर और दीगर मुल्जिमीन ने इस कारोबारी को और उसके घर वालों को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करने की धमकियां दी थी। पुलिस ने बताया कि यह वाकया जुमे की दोपहर को पेश आया है। यानी आप समझ सकते हैं कि वर्दी पहनकर ये खुद
कितने घोटाले, कितने करप्शन और कितने बड़े आतंकवादी बन जाते हैं कि वर्दी का डर दिखाकर लोगों को गलत मुकदमात में फंसाने की धमकियां देते हैं। ऐसे ही मामला मुंबई में पेश आया। नई मुंबई पुलिस ने एक पुलिस इंस्पेक्टर और उसके 5 दीगर साथियों को मुंबई पुलिस एहलकार जाहिर करने और एक ताजिर से 2 करोड़ रुपए हफ्ता लेने के बाद उसे और उसके अहल खाना को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। ताहम पुलिस इंस्पेक्टर नितिन विजयकर जो थाने देही पुलिस में तैनात है, इनको पीर की सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया, जब इस जुर्म में उनके किरदार की निशानदेही की गई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में शिकायत कुनिंदा एक राजेश कटरा जो 54 साल का है, जो घाटकोपर में रहता है और एक कोल्ड स्टोरेज कंपनी के काम का इंतजाम करता है, जबकि कंपनी का मालिक नागपुर में रहता है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस, इंडिया ग्रुप जो इंडिया को बचाने निकला है, जैसे उस वक्त बाकायदा अंग्रेजों से इस मुल्क को बचाया गया था, इस वक्त नफरत के पुजारियों और नफरत के सौदागरों से और नफरत फैलाने वाली पार्टी से बचाने के लिए इंडिया अलायंस एक बड़ा ग्रुप बना है। इंडिया ग्रुप के रैली के बाद गुज़िश्ता कल आप जानते हैं कि बाकायदा दिल्ली के रामलीला मैदान में जबरदस्त अंदाज में अपोजिशन की तमाम पार्टियां यानी इंडिया ग्रुप की जबरदस्त महारैली हुई। उस रैली के बाद विजयन ने बीजेपी को खबरदार किया। एनडीए हुकूमत अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को नाफिज कर रही है और बीजेपी की क़यादत में अपोजिशन पार्टियों के लीडरों के लिए मुल्क गिर शिकार अपना रही है। खैर, केरला के वजीर आला विजयन ने पीर को कहा कि नई दिल्ली में इतवार को होने वाली इंडिया ग्रुप की रैली भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए हुकूमत के लिए एक बड़ी वार्निंग है और इसे आने वाले लोकसभा इलेक्शन के सियासी मैदान में बहुत अहम करार दिया जा रहा है। एक्चुअल में इंडिया अलायंस की रैली की कामयाबी के बाद बीजेपी के खेमे में भी बौखलाहट है और बीजेपी के पास सब जानते हैं कि पैसा बेहिसाब है, बेहिसाब घोटाले और बेहिसाब करप्शन किया है। जी हाँ, इसका पैसा बीजेपी के पास बहुत है और बीजेपी पैसे की खूब रेल पेल करके 2024 का इलेक्शन डरा कर धमका कर पैसे बांटकर जीतना चाह रही है। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मैच फिक्सिंग कर रही है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, मुंबई से एक बड़ी खबर फिर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि शहर मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दबदबा तकरीबन खत्म हो गया। हफ्ता वसूली के फोन भी अब लोगों को बंद हो गए। बताया जा रहा है मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने यह दावा किया है कि इमसाल अंडरवर्ल्ड के हफ्ता वसूली के फोन की एक भी शिकायत हमारे पास नहीं आई। गुज़िश्ता हफ्ते डॉन प्रसाद पुजारी की गिरफ्तारी के बाद से ऐसा लगता है कि मुंबई में गुंडागर्दी का खात्मा हो जाएगा। क्राइम ब्रांच के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हफ्ता वसूली की कॉल्स 2015 में 94 से कम होकर 2023 और 24 में सिर्फ 1 रह गई। 1990 में क्राइम ब्रांच का एंटी एक्सटॉर्शन सेल ऐसी कॉलों से निपटने के लिए तश्कील दिया गया था जो ताजिरों, बिल्डर्स और मशहूर शख्सियात को मौसूल होती थी और छोटा शकील, छोटा राजन, एजाज लकड़ावाला और रवि पुजारी, सुरेश पुजारी, प्रसाद पुजारी जो कि हफ्ता वसूली की ज्यादातर कॉलों के जिम्मेदार थे। लेकिन अब मुंबई क्राइम ब्रांच का यह दावा है कि शहर मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दबदबा खत्म हो गया और हफ्ता वसूली के कॉल्स जो बिजनेसमैन, ताजिरों को आते थे वो बंद हो गए। महाराष्ट्र हुकूमत का एक नया फरमान जारी हुआ है। कौन सा फरमान? फरमान यह है कि हर जानवर के कानों में टैग होगा। जी हाँ, खबरें आ रही है कि इस फरमान से मुंबई में गोश्त की सप्लाई मुतासिर हो गई।
देवनार स्लॉटर हाउस में स्टाफ की कमी भी हो गई है। महाराष्ट्र हुकूमत खबरें आ रही कि आज से यानी 1 अप्रैल से बकरे और बड़े जानवरों के कानों में टैग लगाना महाराष्ट्र हुकूमत ने लाजमी कर दिया है, जिसकी वजह से देवनार स्लॉटर हाउस से जानवरों के गोश्त की सप्लाई मुतासिर हुई है। रियासती हुकूमत ने 4 दिसंबर 2023 को यह फैसला किया था कि 1 अप्रैल से देवनार स्लॉटर हाउस में ज़बह करने के लिए आने वाले हर जानवर के कान पर टैग लगाने का अमल नाफिज किया जाएगा। हुकूमती फैसले के मुताबिक भारत लाइव स्टॉक पोर्टल पर हर जानवर की एंट्री होगी, उसके बाद ही जानवरों का मुआयना किया जाएगा और कानों में टैग लगाया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद जानवर ज़बह के लिए जाएगा। रमजान के महीने में इस कार्रवाई की वजह से गोश्त के व्यापारियों में कारपोरेशन के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख ने म्युनिसिपल कमिश्नर कुलकर्णी को खत लिखकर कान पर टैग लगाने के अमल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पहले ही तमाम तर इंतजाम करने और स्टेक होल्डर्स बशमूल मुस्लिम कम्युनिटी के मुंतखब नुमाइंदों की मुश्तरका मीटिंग लेकर इस अमल को अमल में लाना चाहिए था। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हुकूमत को यानी आम आदमी पार्टी की हुकूमत को तोड़ने के लिए, गैर मुस्तहकम करने के लिए साफ तौर से उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए 25 करोड़ रुपए पेश किए गए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनके एमएलए को 25-25 करोड़ की पेशकश की जा रही है। दिल्ली असेंबली के इजलास के दौरान आम आदमी पार्टी के एमएलए ने कहा कि अब बीजेपी ने दिल्ली में अपनी घटिया और नीच किस्म की सियासत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ सदर राज लगाने की बात ही सुनाई दे रही थी, लेकिन इतवार के रोज जब वो एक शादी में गए तो वहां कुछ लोग थे जो गुज़िश्ता 3-4 रोज से फोन पर मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर उन लोगों ने डिस्कस में ये बताया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के एक एमएलए को तोड़ने के लिए और बीजेपी में शामिल होने के लिए 25-25 करोड़ रुपए दे रही है। एक्चुअल में बीजेपी के पास में बेहिसाब पैसा आ गया है और बीजेपी किसी भी जगह की जमहूरी तौर से जीती हुई पार्टी को खत्म करने के लिए भी करोड़ों अरबों रुपए का इस्तेमाल कर रही है।